students. How are you all? I hope you all are doing well. Now, in your previous class, you have started with the chapter number 3, that is atoms and molecules. Now, many topics have been covered by Neha ma'am, and I hope that you all have gone through your NCERT book. The topics that were covered by Neha ma'am was, the first one was the law of chemical combination. So let's have a quick recap of what you have done earlier, and then we will switch on to today's topic. So the two laws were the law of conservation of mass and the other was law of constant proportion. Now, who gave these laws? Right, these laws were given by Lavoisier and who was the next one? Joseph L. Proust. Right, in your NCERT book, in page number 30, I will tell you, and please underline there also, it is page number 31. In page number 31, second row, topmost, the line is there that it was, these laws were given by Lavoisier and Joseph L. Proust. Now, what does this law of conservation of mass say? Conservation means to conserve, bachana. So, conservation of mass means that in a chemical reaction, the total amount of mass is same before the reaction and after the reaction, right? So, suppose I have a chemical reaction A plus B and it is giving you AB. तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? They are called as the reactants and this is called as the product. So in a simple language we can say that जो reactants का mass होगा, that is equal to the mass of the product. So here the mass is conserved, right? So this is the conservation of mass. What do law of constant proportion says? It says that in a chemical compound, same elements, they combine together in a definite proportion by mass and volume, irrespective of their preparation. Clear? So, constant proportion means कि जो compound है, कोई भी compound, any compound, it is made up of always same type of element, right? जैसे अगर हम बात करें H2O की, what is it? It is a compound. It would always be made up of hydrogen and oxygen, right? And the proportion of hydrogen and oxygen would always be same in terms of mass and volume, right? तो अगर हम volume की बात करें तो ratio कितना है इसमें? 2:1, right? और अगर mass की बात करें तो that is 1:8. तो आप कहीं से भी कोई भी water ले लो, any water from lake, from river, from pond, from rain, कहीं से भी ले लोगे तो जो proportion hydrogen और oxygen का होगा in terms of mass and volume would always be same, and water will always be made up of hydrogen and oxygen. So these were the law of chemical combination and law of constant proportion. Next, children, you have also done the theory, the atomic theory, which was given by John Dalton. There are 6 points, and let me tell you, children, those points are very, very important, right? So learn all those 6 points, because in the exams it is asked कि write the features of John Dalton's atomic theory. ठीक है, या तो आपको बोल देंगे कि कोई भी 4 points लिखो, तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो याद करना है. ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? इफ यू रिमेंबर, द टॉपिक वाज द एटम्स, है ना? यू हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द एटम्स. व्हाट आर एटम्स? एटम क्या होते हैं? एटम, दे आर द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ any matter, any element, that is the atom, right? And this atom, they can exist independently, they may not exist independently, right? So atoms are very smallest unit of element which can exist independently and which cannot exist independently. अब इसका मतलब क्या है जो मैं कह रही हूँ exist independently का मतलब, for example, if I talk about neon, ठीक है, या मैं ले लूँ आर्गन,
ये क्या एलिमेंट है? ये एटम से बने हैं और इनका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. बट इफ आई टॉक अबाउट द हाइड्रोजन और आई टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम, पर एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसका एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा तब H2 बनेगा. दिस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. समझ में आ गया? पर इसमें क्या है? दीज आर इनर्ट एलिमेंट्स, दीज आर नोबल गैसेस, तो इसको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो इनका जो एटम है ये इंडिपेंडेंट रह सकता है. सो व्हाट इज एन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट which may or may not exist independently, right? So this was about the atoms. Clear? Then इसके बाद आपने क्या किया था? आपने किए थे symbols, है ना? Symbols, they were very very important symbols. और symbols ही किसने दिए थे? Initially the symbols were given by Berzelius, right? But the symbols that were given by Berzelius that were not accepted universally. तो फिर किसने बाद में दिए? Yes, the symbols were given by IUPAC. इसका बच्चे full form is very very important. Now, what is the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry, right? So they have given the symbols and those symbols were worldwidely they were accepted. क्लियर? अब सिंबल्स को किस तरीके से लिखना है वो भी आपने किया था कि सिंबल्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन लेटर और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर्स. जैसे कि यहाँ पे था, जैसे ये है, ये तो नियॉन था, सॉरी बच्चे, ये नियॉन था. दिस वाज नॉट एन, मैंने लिखा था ना, एन इज फॉर नाइट्रोजन, नियॉन इज NE, राइट? सो इसको करेक्शन कर देना यहाँ पे. तो ये क्या है? आप अगर मैं लिखूं के, दिस इज सिंगल, ये हाइड्रोजन, ये भी सिंगल लेटर से डिनोटेड है. पर अगर मैं लिखूं ये, दिस इज हीलियम, दिस इज हीलियम, तो ये दो लेटर से डिनोटेड है. सो एनी सिंबल ऑफ एन एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन लेटर और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर्स. नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग दिस सिंबल्स कि अगर एक लेटर है तो वो हमेशा कैपिटल होगा और अगर दो लेटर से है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा. अब कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनके कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो एलिमेंट के नाम में से नहीं निकलते. तो वो कौन से नाम से निकलते हैं? लैटिन, जो उनका लैटिन वर्ड है उसमें से निकलते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का सिंबल है Al. दिस इज द सिंबल फॉर एल्यूमिनियम, है ना? तो Al तो निकलता है एल्यूमिनियम से, बट कुछ ऐसे सिंबल हैं जो हमारे उसके वर्ड से नहीं निकलते. कौन से वर्ड से निकलते हैं? उनके लैटिन नेम जो है उसमें से निकलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, पोटेशियम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर K, राइट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर K. पर पोटेशियम में कहीं भी K तो आता नहीं, तो ये K कहां से आया? पोटेशियम का ही एक लैटिन नेम है, दैट इज द केलियम. केलियम, तो उसमें से आया पोटेशियम, राइट? सो दीज वर ऑल दीज सिंबल्स दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. एवरी टाइम वी आर टेलिंग यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो बिफोर द वेकेशंस आई हैव टोल्ड यू दैट केमिस्ट्री इज ऑल बेस्ड ऑन दीज सिंबल्स. तो अगर आपको सिंबल्स याद नहीं है तो फिर से बोल रही हूँ, सारे सिंबल्स याद करिए. फिर आपने एक और टॉपिक करा था एटॉमिक मास, है ना? अब जो एटॉमिक मास है एटम का, एटम तो बहुत छोटा होता है, तो उसका मास, एब्सोल्यूट मास निकालना बहुत डिफिकल्ट है. वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट मास ऑफ द एलिमेंट. सो व्हाट डू वी एटम, सो व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड अ रिलेटिव एटॉमिक मास. ओके, तो आपने क्या किया था? वी हैव एब्सोल्यूट मास. So absolute mass is not possible to find of an atom. तो हम क्या निकालते हैं? We take out the relative mass. किसी भी एटम का हम relative mass निकालते हैं. Now what do you understand by relative mass? That it is the mass in relation to some standard mass of an atom. तो standard कौन सा mass हमने लिया? कार्बन 12.
ठीक है, तो हम किसी भी एटम का जो मास लेते हैं दैट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू द एटम, द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12. Clear, children? So this was all you have done with Neha ma'am. This was the recap that I have done with you. Now today what we are going to start? We are going to start about the molecules, right? So by the end of this video, you will be able to understand what is molecule, molecule of an element, molecule of a compound, and also you will be understanding the concept of atomicity, that what is atomicity. Clear, children? So let's start with today's topic, that is molecule of element and molecule of compound. So we will start with today's topic, that is molecule of element and molecule of compound, right? So first of all, let's discuss about that what is a molecule. Now molecule, it is the smallest particle of a compound which is able to exist independently. Clear? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है, right? Molecule is always formed when two or more atoms they combine together. For example, let's talk about the hydrogen. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2. तो इसका मतलब कि इसमें कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं? एक एटम हाइड्रोजन का प्लस दूसरा एटम हाइड्रोजन का, तो ये कितना बन गया? H2. समझ में आ गया ये? So that is two atoms, they are combining together to form a hydrogen molecule. Clear? अगर मैं बात करूं नियॉन की, तो नियॉन ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये कितने एटम से बना है? ओनली वन सिंगल एटम ऑफ नियॉन. क्लियर? अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन O2 है. O2 का मतलब इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. और अगर मैं लिखती हूँ सिर्फ O, तो O का मतलब कितने एटम है? ओनली वन एटम. इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम. क्लियर? बट दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल. दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल. Molecule, it can exist. The molecule is always that can exist independently. मॉलिक्यूल हमेशा, ठीक है. एटम जो है, एटम जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली हमेशा एग्जिस्ट कर सके. जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एटम से बना हुआ, दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम. बट ये ऑक्सीजन इट विल नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, हमेशा एक एटम को दूसरे एटम से कंबाइन होना ही पड़ेगा ऑक्सीजन में, तभी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. पर अगर नियॉन की बात करूं, नियॉन का एटम अकेला रह सकता है, राइट? एटम्स, लिसन केयरफुली, दैट एटम्स दे कैन और दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसमें एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये मैं किसकी बात बता रही हूं आपको? एटम्स की बात बता रही हूं. ठीक है, सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है, पर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा? O2. तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, बट एटम जरूरी नहीं है. समझ में आ गया? और मॉलिक्यूल बना किससे है? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स. क्लियर? सो लेट्स हैव द डेफिनेशन दैट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड. जैसे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम. ठीक है, उसी तरीके से कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल. ठीक है बच्चे? सो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड which is able to exist independently, right? This molecule can exist independently, but atom it may or it may not.
समझ में आ गया आपको ये चीज? ठीक है, अब ये जो एटम्स हैं, ये एटम जब कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए कभी 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, कभी 3 एटम्स कंबाइन करते हैं, कभी 4 एटम्स कंबाइन करते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, जैसे कि आप अगर बात करो ऑक्सीजन की, ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का क्या है, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन क्या है, इट इज एन एलिमेंट। तो आई कैन से दैट O2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन का एलिमेंट है। इसी प्रकार से, और ये बना कैसे है, 2 एटम्स को कंबाइन करके। ठीक है, ऐसे ही O3 किसका फॉर्मूला होता है, ओजोन का, तो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, right, or also the molecule of oxygen. Clear, right? So depending upon that how many atoms are combining together, there is a term called as atomicity. Clear? So we have the term atomicity. What is atomicity? It is the number of atoms in a molecule of an compound or element. It can be compound or एलिमेंट। क्लियर, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, तो उस नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे हमने नाम दिया है। इट कैन बी मोनोएटॉमिक, इट कैन बी डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब, मोनो मतलब सिंगल, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ सिंगल एटम होता है उसको हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। जैसे नियॉन है, नियॉन एक ही एटम से बना है, आर्गन एक ही एटम से बना है, हीलियम एक ही एटम से बना है, तो ये एग्जांपल्स हैं आपके मोनोएटॉमिक के। और हम ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट दी मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है आपका डायटॉमिक। डायटॉमिक में एग्जांपल्स है आपका O2 इज एन एग्जांपल, क्योंकि इसमें कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये डायटॉमिक का हो गया। ट्राई का मतलब जिसमें 3 एटम्स हैं, तो इसमें कितने एटम्स हैं, 1, 2 एंड 3, तो ट्राइएटॉमिक हो गया। पॉलीएटॉमिक क्या हुआ, पॉलीएटॉमिक मींस मोर देन 3, और कितने भी नंबर हो जाए। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द फास्फोरस। फास्फोरस में 4 एटम्स होते हैं। फास्फोरस का मॉलिक्यूल बनने के लिए 4 एटम्स चाहिए, तो हम इसको बोलते हैं या तो टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे या पॉली एटॉमिक। ऐसे ही सल्फर का जो मॉलिक्यूल बनेगा, वो सल्फर का मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, दिस इज ऑल्सो अ पॉली एटॉमिक। सो चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स। आप पेज नंबर ओपन करिए, आपकी टेबल बनी हुई है बेटा, एंड द पेज नंबर आई विल टेल यू द पेज नंबर, इट इज पेज नंबर 36। पेज नंबर 36, यहाँ पे देखो ये टेबल बनी हुई है, right? In this table there are different examples of monoatomic, diatomic, tetraatomic and polyatomic. तो आपको ये examples याद होने चाहिए, ठीक है। In the exams the examples are asked कि atomicity क्या होती है, what is atomicity? Atomicity is the number of atoms in a molecule. Molecule किसका हो सकता है, element का भी और compound का भी। अभी हमने किसके examples करेंगे, element के। We have talked about the element. एटॉमिसिटी कंपाउंड की भी हो सकती है, ठीक है, ये तो अभी सारे एलिमेंट ही है ना हमारे। सो दीज आर ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। सो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और मॉलिक्यूल बनता किससे है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं, राइट। और कुछ एलिमेंट के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अकेले भी रह सकते हैं, दैट मीन्स उसमें एक ही एटम होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं, तभी उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल, diatomic or triatomic. So these are all about the atomicity. Now let's discuss about the
एटॉमिसिटी ऑफ अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ये सारा हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किया है। इसमें हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, पर कंपाउंड क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। So children, we have the compound. Now we will do the compound. कि compounds क्या होते हैं? Now compounds again, they are the atoms of different element. They are the atoms of different element. For example, let us talk about CO2. What is this? This is carbon dioxide. Now this is carbon. ये आपका क्या है? ये है carbon और ये क्या है आपका? oxygen. है ना? तो and this whole is a compound. It is made up of atoms of different elements. एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है? So atoms of different elements they combine together in definite proportion. Definite proportion किस में होगा? Mass and volume. So कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन का जो मास होगा या वॉल्यूम होगा, दैट वुड बी सेम एवरी टाइम। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लिया तो इसमें जो वॉल्यूम है, कार्बन की वॉल्यूम कितनी है? 1 और ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है? 2। तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 का रेशियो रहेगा। और अगर हम मास की बात करें तो एटॉमिक मास के हिसाब से रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इट वुड बी 3:8। सो ऑलवेज इन अ कार्बन डाइऑक्साइड द ratio of mass of carbon and oxygen would be 3:8. Let us have about the hydrogen. Water. Water is made up of. Now what is this? This is a compound. इसको मैंने compound क्यों बोला? Because it is made up of hydrogen and oxygen. So compound is always made up of atoms of different elements. Clear? So hydrogen और oxygen है। अगर मैं इसमें volume देखूं तो क्या proportion है इसका? 2:1. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Clear? अब मास के हिसाब से देखूंगी तो ये आ जाएगा 1:8. So water में हमेशा the volume of hydrogen and oxygen would be 2:1 and the mass would be a 1:8. Clear? So this is about the compound, right? So always remember children, if I am writing अच्छा, अब इसमें एटॉमिसिटी की बात कर रहे थे कि अगर एटॉमिसिटी निकालनी है, ये कंपाउंड है ना CO2, CO2 की बात करते हैं हम। Let us talk about the atomicity now. Atomicity of element and atomicity of compound. ठीक है? तो हम चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, हमें क्या बताना है? हमें एटॉमिसिटी बतानी है। तो लेट्स हैव एक हम ले लेते हैं P4, एक लेते हैं S8, एक ले लेते हैं इसमें H2, एक इसमें हम ले लेते हैं आर्गन, फिर ले लेते हैं हम हीलियम ले लेते हैं, फिर हम ले लें और क्या ले सकते हैं? लेट अस टेक अबाउट द नाइट्रोजन, और हम बस इतने ले लेते हैं एलिमेंट्स। ठीक है? अब कंपाउंड्स हम ले लेते हैं। कंपाउंड्स वी विल टेक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ले लेते हैं। ठीक है? फिर हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड। ठीक है? फिर हम ले लेते हैं HNO3 ले लो। ठीक है? HNO3 ले लिया हमने। फिर आप और ले लो, और कुछ बताओ, कंपाउंड्स के नाम बताओ कुछ। ओके, वी हैव टेकन H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है? तो अब ये देखो, ये सारे एलिमेंट्स हैं, एक तरीके के एटम से बने हुए हैं, एक ही तरीके के एटम से बने हैं। मैंने ये नहीं बोला एक एटम से बने हैं। एक एटम से कौन सा बना हुआ है? एक एटम से बताओ, ये वाला बना हुआ है। इसमें कितने एटम्स हैं? एक एटम। दीज आर ऑल दी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दीज आर दी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है? तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो एक एटम से बने हैं? वो ये वाला एक एटम से बना है, ये एक एटम से बना है ना? तो ये क्या हुए हमारे? ये हुए हमारे मोनो एटॉमिक। ठीक है? अब दो वाले देखो, अब ये कितने एटम से बना हुआ है? 2 एटम से। तो ये क्या हुआ हमारा? डाई एटॉमिक। ठीक है?
अब देखो हमारा ये भी हमारा डाई एटॉमिक है, दिस इज ऑल्सो डाई एटॉमिक, ये और ये क्या हुआ, दिस इज पॉली एटॉमिक। तो ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, जो यहाँ नीचे लिखा होता है ना वो होता है नंबर ऑफ एटम, और इसको हम बोलेंगे दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ आर्गन, वन मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, राइट। तो जो यहां पर होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं लिखूं 2O2 तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, these are the two molecules of oxygen and in every molecule how many atoms are there, 2 atoms are there। तो टोटल इसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसकी भी हम एटॉमिसिटी बता सकते हैं, कैसे, कार्बन के कितने एटम है, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ध्यान देना, कार्बन में कितने एटम्स है, 1, ऑक्सीजन में 2, तो ये कितने हो गए, एटॉमिसिटी 3 हो गई। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 2 + 1 3 एटॉमिसिटी, इसकी हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1, सो 1 + 1 2। यहां पे देखो 3 एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन 1 + 1 + 3 3 4 5 हो गए। यहां पर कितने हुए, हाइड्रोजन के 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 4 5 6 7। So these are what? These are the atomicity of these compounds. Clear children? तो ये समझ में आ गया कि molecule of element क्या होता है, molecule of element means एक ही element है उसका molecule, और molecule of compound का मतलब different elements हैं उनको combine करके जो molecule बना उसको हम कहेंगे molecule of compound। यहां पर भी दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां देखो क्या है, ये 1 है ना, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? तो जो नीचे लिखा होता है दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स, और जो यहां पे लिखा होता है दैट इज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। सो चिल्ड्रन, जो एटॉमिसिटी वाला टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है कि एटॉमिसिटी पूछा जाता है कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। Then this is also asked in the exams कि what is the difference between molecule of element and molecule of compound, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, और ये जो मोनोएटॉमिक के एग्जांपल्स, डाईएटॉमिक के एग्जांपल्स, दिस ऑल यू शुड नो। नाउ चिल्ड्रन, ये जो केमिकल कंपाउंड हैं, अब जैसे ये मैंने कंपाउंड्स लिख दिए ना मैंने केमिकल कंपाउंड्स, अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज कंपाउंड्स शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला, है ना, दे हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला। क्योंकि अगर हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखें, सल्फ्यूरिक एसिड लिखें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा वर्ड फॉर्म में लिखें, तो इट बिकम्स वेरी टीडियस जॉब टू राइट इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इनके हम सिंबल्स, ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा हुआ है आपका, ये फॉर्मूलाज बने हुए हैं। तो ये फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, व्हाट इज द मेथड ऑफ मेकिंग फॉर्मूला, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल नाउ अगर आपको केमिकल फॉर्मूला तभी इंटरेस्टिंग होगा बच्चे जब आपके पास पूरी नॉलेज होगी कि एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या हैं। तो एलिमेंट्स के सिंबल्स बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वीडियो ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? So I hope this lecture of molecule of element and molecule of compound is clear to you, and we will start with chemical formula in our next video. Bye bye children.